تلنگانہ سے عازمین حج کی روانگی کا عمل آج سے شروع ہو گیا۔ پہلے قافلے میں کرناٹک کے 423 عازمین کا قافلہ آج صبح 7:20 پر شمس آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوا۔ حج ہاؤس سے عازمین کی روانگی کا منظر بے حد جذباتی اور روح پرور رہا۔ عازمین تلبیہ پڑھتے ہوئے مقدس سفر پر روانہ ہوئے۔ عازمین حج کے رشتہ داروں اور احباب نے ان کو نم آنکھوں سے وداع کیا، ان سے دعاؤں کی درخواست کی۔ بیتی رات دیر گئے پہلے قافلے کو خصوصی بسوں کے ذریعے حج ہاؤس نامپلی سے ایئرپورٹ لایا گیا۔ صدر نشین تلنگانہ حج کمیٹی مسیح اللہ خان، چیف ایگزیکٹو آفیسر حج کمیٹی بی شفیع اللہ اور دوسروں نے عازمین حج کے پہلے قافلے کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ صدر نشین تلنگانہ حج کمیٹی مسیح اللہ خان نے اس موقع پر کہا کہ عازمین حج کی روانگی کے مناسب انتظامات کیے گئے ہیں۔ تلنگانہ کے عازمین حج کی پروازوں کی روانگی کا آغاز 26 جولائی سے ہونا ہے۔ سے اچھا انتظام کر کے یہاں سے حاجیوں کا جو پہلا قافلہ تھا جو کہ کرناٹکا اسٹیٹ کے تھے پورے یہاں سے پورے الحمدللہ جا چکے ہیں۔ میں اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ اچھے صحت سے جا کے وہ لوگ صحت سے واپس اپنے ملک کو واپس آئے۔ گلبرگہ شریف سے اب یہاں پہ ماشاءاللہ اچھا ہے، ٹھیک ہے، کل سے جو ہے اچھا انتظام ہے۔ ہم امن چاہتے ہیں، ہم امن پسند ہیں، ہم خوشحال رہنا چاہتے ہیں، ہم دوسروں کو کسی کو تکلیف دینا نہیں چاہتے، ہم سب کو اچھا رکھنا چاہتے ہیں، ہم بھی ٹھیک رہنا چاہتے ہیں۔ ہماری طرف سے یہ میں ان لوگوں کے لیے دعا کروں گا مدینہ شریف میں اور مکہ شریف میں، ان لوگوں کے لیے، ہمارے خاص رشتہ داروں کے لیے اور میرے خاص احباب کے لیے، دوستوں کے لیے، سب کے لیے، عالم میں پورا اسلام کے لیے میں جو ہے دعا کروں گا۔ امت کے اوپر جو مظالم آج سارے مسلمانان عالم میں ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس مظالم کو ختم کر دے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے یا ان ظالموں سے مسلمانوں کو بچائے۔ میری خواہش یہ ہے کہ میں روزہ اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری پیش کروں اور ساری امت کے لیے اور سارے دوست احباب اور سارے لوگوں کے لیے جو ہے نا، جو کچھ بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے دعائیں کی اور ساری امت کے لیے جو دعائیں کی ہیں، میں سب کے حق میں وہی دعاؤں کی قبولیت چاہتا ہوں۔ تلنگانہ اسمبلی کی 2 روزہ خصوصی اجلاس کا آج سے آغاز ہو گیا ہے۔ تلنگانہ اسمبلی میں آج 4 بل بشمول پنچایت راج بل منظور کیے گئے۔ آرڈیننس کی جگہ لینے والے دیگر منظور بل میں ٹیچنگ اسپتالوں میں خدمات انجام دینے والے ڈاکٹرز کی حد عمر 58 سے بڑھا کر 65 کرنے والا بل بھی شامل رہا۔ اسمبلی میں وزیر اعلیٰ KCR نے میونسپل قانون بل پیش کیا جسے اسمبلی میں منظور کر لیا گیا۔ بلوں کی منظوری کے دوران اپوزیشن کی جانب سے پوچھے گئے سوالات کا وزیر اعلیٰ KCR نے خود جواب دیا۔ MIM، کانگریس اور BJP نے ان تمام بل کی تائید کی۔ MIM کے فلور لیڈر اکبر الدین اویسی نے حیدرآباد کے پرانے گورنمنٹ اسپتال عثمانیہ جنرل اسپتال کا معاملہ اٹھایا۔ انہوں نے حکومتوں پر ہیریٹیج یعنی اپنی ثقافت کی حفاظت پہ لاپرواہی کرنے کا الزام لگایا۔ گورنمنٹ اسپتالوں کی خستہ حالی پر افسوس کا بھی انہوں نے اظہار کیا۔ ساتھ ہی انہوں نے عثمانیہ اسپتال، چار مینار یونانی اسپتال کو حیدرآباد کی اہم تاریخی نشانیاں قرار دیا۔ عثمانیہ اسپتال کی عظمت رفتہ کو بحال کرنے کی اکبر الدین اویسی نے حکومت سے مانگ کی۔ برس پہلے دواخانے عثمانیہ کے لیے 200 کروڑ روپے گورنمنٹ آف انڈیا کی گرانٹ آئی تھی دواخانے عثمانیہ کی تعمیر کے لیے، لیکن آج دواخانے عثمانیہ اتنا مخدوش ہو گیا ہے کہ پانی ٹپک رہا ہے، اس میں سے جھرنے کی طرح گر رہی ہے، عمارت گر رہی ہے، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ چاہے کوئی بھی حکومت ہو، میں اس حکومت پہ نہیں کہہ رہا ہوں، ہمارے ہیریٹیج کو یا تو نظر انداز کیا گیا اور لاپرواہی کے ذریعے ہمارے ہیریٹیج کو گرنے کا موقع دیا گیا، یا گرا ہے تو گرنے کے بعد کہتے ہیں کہ گر گیا ہے۔ تو عثمانیہ دواخانہ پورا شفٹ ہوتے جا رہا ہے، ایک ایک بلاک وہاں سے ہٹایا جا رہا ہے، میٹرنٹی ہاسپٹل میں لے جایا جا رہا ہے، پیٹلا برج میں لایا جا رہا ہے۔ آج یہ ہاسپٹلز بالکل ہی آج گورنمنٹ دواخانے کمزور ہو رہے ہیں۔ تو میں حکومت سے مطالبہ کروں گا کہ عثمانیہ دواخانے کی اس عظمت کو دوبارہ بحال کیا جائے اور اس کی خوبصورتی کو دوبارہ بحال کیا جائے۔ یہ ہمارے حیدرآباد کی ایک نشانی ہے۔ عثمانیہ ہاسپٹل ہو، چار مینار دواخانہ ہو، یہ سارے ہمارے میدان صحت کے ایک بہت بڑی نشانیاں ہیں، ان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ 1 سال سے
काम नहीं हुआ है। एक वक्त अगस्त से जो असेंबली डिसॉल्व हुई है, फिर उसके बाद इलेक्शन 3 महीने 2 महीने होत गुजरते गए, इलेक्शन हुआ, फिर असेंबली इलेक्शन खत्म हुआ, फिर पार्लियामेंट का इलेक्शन आया। अभी भी हम 1 साल से इलेक्शन मोड में है, इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट के मोड में है। अब और इलेक्शंस है, इस वजह से ये सारे काम रुके हुए हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये आरोग्यश्री ये जो ड्यूज हैं उसको क्लियर करेंगे। ये बहुत अच्छा और एक कामयाब। तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर ने कहा है कि साबिका हुकूमतों ने कई इमारतों को सकाफती विरसे में शामिल किया था। तेलंगाना हुकूमत सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेहद संजीदा है और किला गोलकुंडा पर यौम आज़ादी तक़रीब का ख़ास इनेकाद भी किया जाता है। పాలసీ తేవాలని చెప్పి రాష్ట్రంలో ఉండేటువంటి చరిత్రాత్మకమైనటువంటి కట్టడాలు కానీ లేదా చరిత్రాత్మకమైన కోటలు కానీ తెలంగాణ వారసత్వ చారిత్రక సంపదను పరిరక్షించే పద్ధతి కానీ ఒక క్రమంలో జరగాలని చెప్పి వి హావ్ బ్రాట్ ఇన్ ఏ న్యూ యాక్ట్, ఒక ఇంటిగ్రేటెడ్ హెరిటేజ్ పాలసీ ఈ రాష్ట్రానికి కావాలా, దానికోసం తెచ్చినాం. నిపుణుల కమిటీ వేస్తా ఉన్నాం. ఆ కమిటీతో చర్చోపచర్చలు జరిపి ఏ దాని గిల్కుషా గెస్ట్లో కూడా హెరిటేజ్ అంటే ఎట్లా నడుస్తుంది అధ్యక్ష? మీ అందరికి తెలుసు మా ప్రభుత్వానికి మన హెరిటేజ్ పట్ల మన ఎంత గ్లోరిఫై చేయాలనో. చరిత్ర మొత్తం జరగనటువంటి దాన్ని ఇండిపెండెన్స్ డేను గోల్కొండ కోటలో నిర్వహిస్తా ఉన్నాం అధ్యక్ష. ఢిల్లీలో రెడ్ కోర్టులో జరిగితే మన చరిత్రకు ఆనవాళ్ళుగా ఉన్నటువంటి గోల్కొండ కిలాలో మనం స్వాతంత్ర యొక్క దినాన్ని జరుపుతా ఉన్నాం. మా తమరందరూ కూడా అక్కడ హాజరవుతా ఉన్నారు. తెలంగాణ సమాజం కూడా హర్షిస్తూ ఉన్నది. సో మాకు కూడా హెరిటేజ్ పట్ల చాలా కన్సర్న్ ఉంది. ఏ దాన్ని పరిరక్షించాలి, దేన్ని గ్లోరిఫై చేయాలో దాన్ని తప్పకుండా చేస్తాం. ఏదో అప్రధాన్యమైన విషయాలు అనవసరంగా చేర్చబడేవో వాటిని తీసేస్తాం. ఆ కమిటీ, నిపుణుల కమిటీ అన్ని విషయాలు చర్చిస్తారు అధ్యక్ష. దాని మీద ముందుకు పోదాం. केसीआर ने यह भी कहा कि रियासत में म्यूनिसिपल इलेक्शन के बाद 4.5 साल तक कोई इलेक्शन नहीं होगा और 4.5 साल सिर्फ और सिर्फ रियासत की तरक्की पर ही तवज्जो दी जाएगी. Rashtam, we are reeling under the election courts, various courts. I think with this municipal election, we will be concluding all the courts will be free. After another 20-25 days, the state will be free. The government will be free to administer. So there will be no problem. Another 4.5 years, we'll fully concentrate. We'll be able to concentrate on the administration matters and development matters alone. ऐवान में अकबरुद्दीन अवैसी ने किसानों के मसाइल पर हुकूमत की जानिब से किए जा रहे इक़दामात की सताइश की, साथ ही किसानों की खुदकुशी को रोकने के लिए मौसर इक़दामात उठाने पर भी जोर दिया और कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर सीएम को अपनी मुबारकबाद भी पेश की. वज़ीर आला ने किसानों की फलाह व बहबूद में काफ़ी काम किया है, ये भी अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा. मिसाली इक़दाम है, मैं कहूँगा, जो किसी भी रियासत में नहीं दिया जा रहा है। और आज मरकज़ी हुकूमत भी हमारी इस किसान की मदद की, इस पॉलिसी, इस प्रोग्राम की कामयाबी को देखते हुए वो भी किसानों के लिए कुछ करने का ऐलान कर रही है। तो इसके लिए मैं चीफ मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद देता हूं. ये हालिया ऐलान के बाद किसानों की खुदकशी में कमी आई है, लेकिन मुकम्मल इसका खात्मा नहीं हुआ है. तो शायद अभी भी कहीं पर हम चूक चुके हैं, शायद और कुछ करना बाकी है जिसके जरिए हम मुकम्मल इस किसानों की खुदकशी को रोक सकते हैं. जो नया कालेश्वरम प्रोजेक्ट का आपने जो इफ्तिताह किया है, मैं समझता हूं कि सारे हिंदुस्तान में यह बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है. ज्यादा से ज्यादा पानी हम किसानों तक पहुंचाएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है और मुझे तवक्को है कि ये सारे प्रोजेक्ट्स को हम करेंगे. अकबर साहब तो ना मनवी दिन की అయితే కావచ్చు 10,000 करोड़ होता होगा करंट बिल, कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए. हमारे सारे किसान के लिए, उनके ज़िंदगी के लिए करंट बिल अगर 10,000 नहीं 12,000 भी भरना पड़े, हम तैयार हैं. हमको तैयार रहना चाहिए, ये हमारा प्रायोरिटी होना चाहिए. इसलिए कि खुदकुशियों से और परेशानियों से, बहरानियों से हमारे किसान को, किसान तबका को बचाना हमारा फ़र्ज़ बनता है. तो इसलिए जो हमको खाना देता है, जो मेहनत करता है, उनको बचा लेना हमारा काम है. असेंबली में कांग्रेस के रुकन मल्लू भट्टी विक्रमार्का की जानिब से कांग्रेस के 12 अरकान असेंबली को टीआरएस में शामिल करने का मसला उठाया गया. तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर ने इस पर वाज़ेह किया कि दस्तूर के मुताबिक ही कांग्रेस के अरकान असेंबली को हुक्मरान जमात टीआरएस में शामिल किया गया है. स्पीकर ने कहा कि ये मामला अदालत में है, इसीलिए इस पर बहस की इजाज़त नहीं दी जा सकती. As required by the Constitution of India, what is that I can do? అధ్యక్ష, ఈ మధ్య ఏపీలో తెలుగుదేశం పార్టీ
రాజ్యసభ సభ్యులు సేమ్ ఇదే పద్ధతిలో 2/3 పోయి మర్జీ అయిపోయిన అధ్యక్ష రాజ్యసభ చైర్మన్ డెసిషన్ కూడా ఇచ్చినారు. వాళ్ళు ఆనరబుల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారిని కూడా కలిసేసినారు. గోవాలో కూడా ఈ మధ్యలోనే మర్జర్ అయిపోయింది. కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళే బీజేపీలో మర్జీ అయిపోయిన అధ్యక్ష. దేశవ్యాప్తంగా మీ పార్టీ వాళ్ళ మీద మీ ఆకర్షణ తక్కువైపోయి మిమ్మల్ని వదిలిపెట్టి బయటకు వద్ద మామూలు నిందించారు ఎందుకండి? మీకు మీరు కంట్రోల్ చేసుకోవాలి తప్ప ఇతరుల మీద పడి ఏడవడం కరెక్ట్ కాదు అధ్యక్ష. ఇది మీరు కాపాడుకోవాలి తప్ప మీకు ఆకర్షణ ఉంటే మీకు నాయకత్వ పటిమ ఉంటే ఎందుకు వదులుతారండి? నాకు అర్థం కాదు. ఇది పెద్ద ఏదో క్రైమ్ జరిగినట్టు ఏదో రాజ్యాంగ వ్యతిరేకం జరిగినట్టు. అధ్యక్ష మీకు అన్యాయం జరిగిన వాస్తవం మేమేం చేయమండి? మీరు కాపాడుకోలేని శక్తి ఉంటే మిమ్మల్ని మీ సభ్యులు డిజైర్ చేస్తే మేమేం చేయాలి దానికి? ఈ దేశంలో ఎవరన్నా 2/3 పార్టీ స్ప్లిట్ అయి వస్తే జాయిన్ చేసుకోరండి, విలీనం చేసుకోరా? దాని ప్రకారం తమరు ఆదేశం ఇచ్చినారు, బులెటిన్ జారీ చేసినారు. దానికి ఏముందండి? నాకు అర్థం కాదు. మా మీద పడేయటం. दल बदल की सियासत के खिलाफ कांग्रेस अरकान असेंबली ने जबरदस्त एहतजाज किया। कांग्रेस के एमएलए स्याह खंडवा पहनकर असेंबली में हाजिर हुए। इससे पहले सीएलपी लीडर बट्टी विक्रमार्का की क़यादत में कांग्रेस के एमएलएज का इजलास मुनक़्क़िद किया गया। इस दौरान असेंबली में उठाए जाने वाले मसाइल पर गौर व खौज किया गया। वाज़ेह है कि कांग्रेस पार्टी के 12 एमएलएज को हुक्मरान जमात टीआरएस ने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है। कांग्रेस पार्टी के रुकन असेंबली कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी इजलास से गैर हाजिर रहे। कुछ और अहम खबरें भी। हैदराबाद के सरकारी अस्पतालों की लापरवाही एक बार फिर से सामने आई। रात के वक्त दर्द-ए-ज़ह से परेशान हाल एक हामिला खातून जब हैदराबाद के मलकपेट सरकारी दवाखाने पहुंची तो अस्पताल के अमले ने मुतासरा खातून को दवाखाने में अंदर दाखिल होने ही नहीं दिया। इसी की वजह से शदीद दर्द से परेशान हाल खातून ने अस्पताल के बाहर ही एक लड़के को जन्म दिया और वक्त पर इलाज मुआवजा न मिलने के सबब नौमौलूद थोड़ी देर में ही दम तोड़ बैठा। मुतासरा खातून फिरदौस फातिमा और उनके रिश्तेदारों ने कहा कि अस्पताल के अमले की लापरवाही की वजह से ही बच्चे की मौत हुई। मुतासरीन ने लापरवाह अस्पताल के अमले के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। आया डिलीवरी मैं व्हील चेयर लावल के पुकार रहा हूँ भी, वो सिक्योरिटी ना कुछ भी नहीं, ऑटो के बाहर यहाँ पे अंदर ऑटो के नीचे यहाँ पर होगा डिलीवरी भी। और वो टाइमिंग से ज़्यादा टाइमिंग करने से बेबी नीचे गिर के डेड हुई उसकी, मैं तो बोल सकता हूँ, समझे आप? क्योंकि मैं ऐसा पकड़ा हूँ, सिक्योरिटी गार्ड कोई नहीं लेके आया यहाँ पे व्हील चेयर्स, वहाँ पे भेज रहे हैं हमको के वहाँ से जाओ बोल के, वहाँ से रास्ता नहीं है, उन्हें खड़े के हंस रहे हैं। और मैडम को अंदर जाके बोल रहा हूँ कि मैं कि मैडम ऐसा एमरजेंसी बोले तो क्या करना हो, वो नहीं है मैडम लेके जाओ चलो పోయిరు వాళ్ళకి డాక్టర్లే బాధ్యతలు చంపేనికి, ఆర్ఎంఓ బాధ్యతలు, దీనిలో సెక్యూరిటీ కూడా బాధ్యతలు, దాయమ్మ కూడా బాధ్యతలు ఉంది. దీని మీద వెంటనే ప్రభుత్వం దీని మీద చర్య తీసుకొని వాళ్ళకి క్రిమినల్ కేసు పెట్టి వాళ్ళకి జైలు పంపించాలని మేము డిమాండ్ చేస్తాం. ప్రజలు డాక్టర్ల మీద దాడి చేస్తే వాళ్ళు క్రిమినల్ కేసు పెట్టి ప్రజలకి జైలు పంపిస్తారు. ఈసోంటి ఘటన చేస్తే డాక్టర్స్ మీద కూడా క్రిమినల్ కేసు పెట్టి వాళ్ళు కూడా జైలుకి పంపించాలి. తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఈసోంటి నెగ్లిజం చేసిన డాక్టర్ల మీద ఒక చట్టం తీసుకువచ్చి వాళ్ళకి కూడా శిక్ష పడలేక మీరు చూడాలని। ईएसआई का रियासती दफ्तर बदनवानियों का मरकज बनता जा रहा है। ईएसआई अस्पतालों और डिस्पेंसरीज में सप्लाई की जाने वाली दवाइयों में बड़े पैमाने पर बदनवानी सामने आई है। विजिलेंस और इन्फोर्समेंट के अहदेदारों ने जब छानबीन की तो पता चला कि 216 रुपये में खरीदी जाने वाली किट को 700 रुपये में खरीदा गया है। इसी तरह मेडिकल टेस्ट किट जो कि 10,000 की कीमत वाली थी, इसे 23,000 रुपये में खरीदा गया। गुज़िश्ता चंद बरसों से यही सिलसिला जारी है। इसके बाद हुकूमत ने विजिलेंस को जांच के अहकाम जारी किए। विजिलेंस अहदेदारों ने जांच के बाद अपनी रिपोर्ट हुकूमत के सामने पेश की। रिपोर्ट में अहदेदारों ने कहा कि गुज़िश्ता 3 बरसों के दौरान 467 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर बदनवानी का मामला सामने आया है। हैदराबाद की पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने कहा है कि सिटी पुलिस ने खतरनाक जराइम पेशा खातून को गिरफ्तार किया है। यह खातून अवाम की तवज्जो हटाकर जेवरात लूट लिया करती थी। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा खातून के पास से 3.5 लाख से ज्यादा मालियाती जेवरात जब्त किए। उन्होंने बताया कि खातून 25 केसों में मुलविस है।
तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के पोते फुरकान अहमद का सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ। सरकारी गाड़ी पर बैठकर टिकटॉक किया गया, जो कि अब सोशल मीडिया में वायरल हो गया है। आपको बताएं कि खम्मम कॉरपोरेशन में एक सरकारी मुलाजिम की जानिब से टिकटॉक करने पर उसे अपनी मुलाजमत से ही हाथ धोना पड़ा था। हाँ, अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस मामले पर हुक्काम का रवैया आखिर क्या होगा। और अब खास बात आंध्र प्रदेश की खबरें। सबसे पहले हेडलाइंस। मुलतवी चंद्रयान 2 की उड़ान के शेड्यूल का इसरो ने किया ऐलान। 22 जुलाई को सतीश धवन खलाई मरकज से होगी परवाज। आंध्र प्रदेश काबीना में 12 अहम बिल को दी गई मंजूरी। CST BC अक़लियतों को 50% नामजद ओहदे। आंध्र प्रदेश के नामजद गवर्नर BB हरिचंदन की 24 जुलाई को हलफबरदारी तकरीब। चीफ जस्टिस दिलाएंगे नए गवर्नर को ओहदे और राजदारी का हलफ। और गैर कानूनी तामीरात की AP असेंबली में सुनाई दी गूंज। CM और अपोजिशन लीडर का वार और पलटवार। हिंदुस्तानी खलाई जांच एजेंसी ने चंद्रयान 2 की नई परवाज का ऐलान कर दिया है। चंद्रयान 2 मिशन को 22 जुलाई यानी पीर की दोपहर 2:43 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन खलाई मरकज से छोड़ा जाएगा। वाज़ेह है कि 15 जुलाई को इसरो के इस बावकार प्रोजेक्ट को चांद की सतह पर भेजा जाने वाला था, ताहम इसको छोड़ने से तकरीबन 1 घंटा पहले इसमें तकनीकी खराबी की वजह से इसकी परवाज मुलतवी कर दी गई। 3.85 टन वजनी रॉकेट को इसरो ने फैट बॉय का नाम दिया है, जिसे बाहुबली भी कहा जा रहा है। रॉकेट चंद्रयान 2 को जमीन के अतराफ ऊंचे मदार में दाखिल करेगा। बाद में इस मदार को इसरो के साइंसदान रिमोट के जरिए अपनी कोशिशों से मजीद ऊपर उठाएंगे। पहली मर्तबा को इंसानी साख्ता शय को लार के इलाके में सॉफ्ट लैंडिंग करने वाली है। ये मिशन चांद की सतह, पानी की दस्तयाबी और उसकी नौयत के बारे में मालूमात बताएगा। इस मिशन की अंदाजन लागत 978 करोड़ रुपए बताई जा रही है। हिंदुस्तान इस मिशन की तकमील पर चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा मुल्क बन जाएगा। कुछ सियासत की खबरें भी। आंध्र प्रदेश कैबिनेट का इजलास वज़ीर आला YS जगनमोहन रेड्डी की सदारत में मुनक़्क़िद किया गया। कैबिनेट ने जुडिशल कमीशन के क़याम पर कानून में तरमीम को हरी झंडी दिखा दी। SC ST BS अक़लियतों को 50% नामजद ओहदे देने का फैसला किया गया। किसानों के लिए तैयार किए गए बिल को मंजूरी दी जाए, जिसमें मालिकाना हुकूक रखने वालों के हुकूक पर किसी भी किस्म का समझौता न किया जाए। रियासत में 1,33,867 ओहदों पर तकर्री के लिए मंजूरी दी गई। अराजियात के रिकॉर्ड पर भी काबीना ने कानून में तरमीम को मंजूरी दी। देही इलाकों में विलेज सेक्रेटरीज, शहरी इलाकों में वार्ड्स के सेक्रेटरी के क़याम को मंजूरी दी गई। एक्वा के किसानों को ₹1.50 फी यूनिट बिजली फराहम करने का यहाँ फैसला किया गया। साथ ही आंगनबाड़ी वर्कर्स की तनख्वाहों में इजाफे पर भी रजामंदी जाहिर की गई। नदियों के किनारे गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ आंध्र प्रदेश असेंबली में वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी और साबिक़ वज़ीर आला N चंद्रबाबू नायडू के दरमियान मुबाहिसा देखने में आया। जगनमोहन रेड्डी ने कहा कि साबिक़ा हुकूमत ने उसूल और ज़वाबित को बालाए ताक रखते हुए नदी के किनारे इमारतें तामीर की। उधर चंद्रबाबू नायडू ने हुक्मरान जमात के तमाम इल्ज़ामात को ही बेबुनियाद करार दिया। నీతులు చెప్పే అవసరమైతే రోడ్డు మీద పడుకోవాలన్నా సరే పనిచేస్తాను తప్ప మీ బెదిరింపులకు నేను భయపడిన అధ్యక్ష. 40 ఏళ్ళ అధ్యక్ష, నేను చాలా చూశాను అధ్యక్ష. రాష్ట్రం మొత్తం ఒక ఆవేదనలో ఉన్నారు అధ్యక్ష. ఈరోజు రాష్ట్రంలో శ్రీనివాసులు గారు కూర్చోండి, ఒక ఆవేదనలో ఉన్నారు. ప్రభుత్వ బిల్డింగ్ కనీసం
సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్ ఉన్నప్పటికీ కూడా ప్రభుత్వ బిల్డింగ్ కూడా పెట్టుకోవచ్చని అవకాశం ఉన్నా కూల్చేశారంటే, ఇక్కడ ఎక్కడ బిల్డింగ్స్ లేకపోయినా కూల్చారంటే ఇది కక్షతో కూల్చేస్తున్నారు. వీళ్ళు ఇంకా రేపు ఏం చేస్తారో తెలియదని ప్రతి ఒక్కరూ భయపడే పరిస్థితికి వచ్చారు. ఇప్పుడు కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు అంటున్నారు మొత్తం బిల్డింగ్లన్నీ కూడా రిమూవ్ చేస్తానంటున్నారు, ఆదేశాలు ఇచ్చారంటున్నారు. ఎవడైనా సామాన్యుడు కానీ ఒక రేకుల షెడ్ వేసుకుని ఉంటే, ఇల్లీగల్గా రేకుల షెడ్ వేసుకుంటే కానీ గమనుంటారు అధ్యక్ష, వెంటనే పోతారు అధికారులు అక్కడికి వెళ్ళి, వెంటనే అధికారులు అక్కడికి పోయి ఆ రేకుల షెడ్ను వెంటనే తీసేసే కార్యక్రమం చేస్తారు. 40 ఏళ్ళు వయసులో రాజకీయ చరిత్ర ఉంటే నలుగురికి రోల్ మోడల్ గా ఉండాలి. రూల్స్ మాకు పాటించవు, సామాన్యునికైతే ఒక రకమైన రూలు. ఏకంగా ఫ్లడ్ లేదు, ఫ్లడ్ ఎట్టొచ్చినా పర్వాలే, మనుషులు ఏమైనా పర్వాలా, నా బిల్డింగ్ మాత్రం నేను ముఖ్యమంత్రి, నా బిల్డింగ్ మాత్రం రెగ్యులరైజ్డ్ పద్ధతిలో ఉండాలా అని చెప్పి దుర్బుద్ధితో ఏకంగా ఆయనే ముఖ్యమంత్రిగా ఉంటాడు, ఆయనంతటా ఆయనే రూల్స్ మారుస్తాడు. ఆ రూల్స్ మార్చింది నువ్వే కదయ్యా అని చెప్పి ఎవరైనా క్వశ్చన్ వేస్తే ఆ డేట్ మాత్రం చెప్పడు. అది తప్ప మిగతాటి అన్ని ఆయన ఏ రకంగా మార్పులు చేశాడో మాత్రం చెప్తాడు. ఈ చెడిపోయిన ఈ వ్యవస్థను మార్పు చేయడం కోసం 4 అడుగులు ముందుకు వేస్తా ఉంటే దాన్ని కూడా వక్రీకరిస్తూ, దాన్ని కూడా తప్పులు పట్టే ఇలాంటి రాజకీయ నాయకులు ఉన్నంత వరకు ఈ వ్యవస్థ ఎప్పుడూ కూడా బాగుపడదు అధ్యక్ష. आंध्र प्रदेश के नामजद गवर्नर बी भूषण हरिचंदन इस माह की 24 तारीख को हलफ लेंगे। 24 जुलाई को 11:30 बजे एपी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस नए गवर्नर को ये हलफ दिलाएंगे। बीबी हरिचंदन 23 जुलाई को भुवनेश्वर से बजरिए तैयारा तिरुपति पहुंचेंगे, जहां वो दर्शन करेंगे। इसके बाद विजयवाड़ा रवाना हो जाएंगे। विजयवाड़ा में साबिक उजाला एन चंद्रबाबू नायडू के कैंप ऑफिस को राजभवन में तब्दील करने का रियासती हुकूमत ने फैसला किया और इस सिलसिले में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इस इमारत की पहली मंजिल पर गवर्नर की क़यामगाह, निचली मंजिल पर उनके ऑफिस का इंतज़ाम किया गया है। करनूल के एक खानगी फंक्शन हॉल में रायलसीमा हज सोसाइटी की जानिब से आज़मीन हज के लिए तरबीती कैंप का इनेकाद किया गया। उलमा ने मुक़द्दस सफ़र से मुतालिक आज़मीन को तफसीली जानकारी दी। इस मौके पर रायलसीमा सोसाइटी के सदर पाशा ने बताया कि तरबीती कैंप मुनक़्क़िद करने का अहम मकसद आज़मीन हज की हर तरीक़े से रहनुमाई करना है। सोसाइटी की जानिब से क्लास चलती है। इस वक्त रवानगी के टाइम पर क्या क्या सामान ले जाने का है, तजुर्बा से बातन चंद बोल के और मुख्तसर में हज की फजीलत क्या कैंप लगाए हैं, तफसील से फजीलत के ताल्लुक से बताते हैं। ये हमारे मकसद ये है कि हमारे करनूल डिस्ट्रिक्ट के जितने भी जा रहे हैं वो आसान से अरकान पूरा करें और उनका हज को कबूल करें। हमें यही। राशन डीलर्स ने मसाइल का हल का मुतालबा करते हुए विजयवाड़ा में एहतजाज किया। राशन डीलर्स एसोसिएशन की क़यादत में ASO दफ्तर पर यह एहतजाज किया गया। रियासत भर में जुमला 30,000 डीलर्स हैं, उनको किसी किस्म का कोई तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया गया। चंद अखबारात में राशन डीलर्स के सिस्टम को बर्खास्त करने से मुतालिक खबरें गश्त कर रही हैं। राशन डीलर्स का इस पर कहना है कि 30,000 ख़ानदान इससे जुड़े हुए हैं। अगर इस सिस्टम को बर्खास्त किया जाता है तो 30,000 ख़ानदान तबाह हो जाएंगे। ప్రభుత్వం మా ఆందోళన పరిగణలో తీసుకొని రేషన్ డీలర్ వ్యవస్థ కొనసాగుతుంది, రేషన్ డీలర్ కుటుంబాలకు ఎటువంటి వృత్తి భద్రతకు లోటు లేదని ప్రభుత్వం ఒక స్పష్టమైన హామీ ఇవ్వాలని ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి, కమిషనర్ గారి దృష్టికి, మా పౌర సరఫరాల శాఖ మంత్రి గారి దృష్టికి ఈ సమస్యను తీసుకువెళ్తూ వారు ప్రభుత్వం నుంచి ఒక స్పష్టమైన హామీని రేషన్ డీలర్లకు ఇచ్చే విధంగా మీరు కూడా మాకు। आंध्र प्रदेश की फायर डिपार्टमेंट की डायरेक्टर अनुराधा ने विजयवाड़ा में सरकारी प्रोग्राम में शिरकत की। उन्होंने इस मौके पर माहौलियात को बचाने के लिए हर शख्स को एक पौधा लगाने की भी अपील की। కలెక్టర్ గారు డబ్బులు ఇస్తారు, దాన్ని బట్టి వాలంటీర్స్ కి వాళ్ళకి ఆపద వస్తే ఫస్ట్ రెస్పాండర్స్గా ఏం చేయాలి అని, ఓకే ప్రజలే కదా ఫస్ట్ రెస్పాండర్స్ ఏ ఆపత్తు వచ్చినా కూడా. అండ్ ఈ జిల్లాల్లో ఫ్లడ్, తుఫాన్ అట్లాంటివి కాస్త ఎక్కువ వస్తుంటాయి కాబట్టి ప్రజలకి వాళ్ళందరికీ తెలియాలి ఏం చేయాలా, ఎట్లా కోప్ చేయాలా అన్నది. సో ఆ ట్రైనింగ్ ఇప్పిస్తున్నాము, మంచి ప్రోగ్రామ్. దే ఆర్ ఆల్సో హ్యాపీ। बुलेटिन में इतना ही। आदाब।